بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستانی قوم کو 550 ارب کا ٹیکہ، بابر اعظم کپتانی سے مستعفی، پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی کے نرالے انداز، ریکارڈنگ کو ہڑپ کرنے کا تازہ منصوبہ سامنے آ گیا اور آفیسرز کو آج سے صاحب نہیں کہا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے آج کی سب سے اہم بریکنگ نیوز، اور وہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کیس کی سماعت کے دوران بشرا بی بی نے وہ کر ڈالا جو اس سے پہلے کوئی نہ کر سکا۔ جسٹس عامر فاروق نے حسب روایت عمران خان اور ان کی بیوی کا کیس اپنی عدالت میں لگایا۔ آج جب بشرا بی بی اپنے وکلا کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئیں تو ان کے وکیل انتظار پنجھوتا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو بتایا کہ میری موکلہ بشرا بی بی اور عمران خان کو آپ پر اعتماد نہیں ہے، یعنی کہ سائل نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ایسے واقعات پاکستانی عدلیہ میں بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، اور در حقیقت ایسی بات کسی بھی وکیل کے لیے اور کسی بھی جج کے لیے انتہائی شرمناک ہونی چاہیے جب اس کا سائل اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے، اور اخلاقی طور پر جج کو خود کو ایسے مقدمے سے علیحدہ کر لینا چاہیے۔ لیکن پاکستانی نظام عدل کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس دلاور، بشیر احمد اور ابو الحسنات جیسے ججز کی بہتات ہے۔ جب سے عمران خان کے مختلف کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کے بعد دوسری پیشی کے لیے لگتے ہیں، تب تقریباً 100% کیسز عمران خان کے کیسز جسٹس عامر فاروق اپنی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اس سے قبل عمران خان بھی اپنے وکلا کے ذریعے جسٹس عامر فاروق پر اظہار عدم اعتماد کر چکے ہیں، مگر آج بشرا بی بی نے جس طریقے سے جج کے منہ پر ان کو کہا کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے اور آپ میرا کیس کسی اور جج کی عدالت میں بھیج دیں، تو یہ یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منہ پہ ایک زوردار عوامی تمانچہ تھا، ایک تھپڑ تھا جس کی دھمک پوری قوم نے محسوس کی، لیکن شاید جس کی شدت اور اس میں چھپی ہوئی ذلت جسٹس عامر فاروق محسوس نہیں کر سکے۔ بہتر ہوتا کہ جسٹس عامر فاروق خود کو اس سے علیحدہ کر لیتے، مگر الٹا انہوں نے انتہائی ڈٹائی سے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کچھ غلط سوچ رہے ہیں۔ اور پھر آج کی سماعت کا فیصلہ لکھواتے ہوئے جسٹس عامر فاروق نے فرمایا کہ میرا سائل اور اس کا وکیل مجھ پر عدم اعتماد کے کوئی مناسب وجوہات نہیں پیش کر سکا۔ جج صاحب، اس سے زیادہ مناسب وجہ کیا ہوگی کہ سائل نے آپ کے منہ پر کہہ دیا کہ اسے آپ پر اعتماد نہیں؟ کیا سائل آپ کو کہتا کہ آپ چور ہیں؟ سائل آپ کو کہتا کہ آپ راشی ہیں؟ سائل آپ کو کہتا کہ آپ بے ایمان ہیں؟ یا کہتا کہ آپ کسی کی چھڑی یا کسی کے بوٹ کے اشارے پر فیصلے دیتے ہیں؟ تو کیا پھر آپ کو اچھا لگتا؟ کیا یہ دنیا کے سامنے پاکستانی عدلیہ کے لیے کوئی اچھا پیغام ہوتا؟ مگر ایسا نہیں۔ اب بات اسلام آباد بار اور پنجاب بار اور پاکستان جو بارز ہیں ان کو نوٹس دے دیے گئے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں عدالت کی معاونت کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ کے جو اہم فورمز ہیں یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بند آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے اور ان کو احساس دلائیں گے کہ وہ نہ صرف خود عوام کی نظروں میں کتنا گر چکے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ عدلیہ پر عوام کے عدم اعتماد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ قوم کو 550 ارب کا ٹیکہ لگا ہے۔ سن 2020 میں عمران خان کے دور حکومت میں شوگر کرائسس آیا جب شوگر کی قیمتیں اچانک بہت تیزی سے اوپر گئی۔ عمران خان نے اس چیز کی تحقیقات کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی جس کی سربراہی معروف سپریم کورٹ کے جج شیخ عدمت سعید نے کی۔ پہلی بار ایک جے آئی ٹی نے نہ صرف مقررہ مدت میں اپنا کام مکمل کیا بلکہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ بھی جمع کرائی اور وہ پھر قوم کے سامنے بھی آئی۔ اس جے آئی ٹی رپورٹ کے روح سے شوگر مل مافیا نے 550
अरब रुपए का नाजायज मुनाफा कमाया और उसको फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अब जब इस पर तहकीकात की बारी आई तो FIA ने उस पर तहकीकात शुरू कर दी। इसमें शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बना। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस निगरान हुकूमत ने FIA को मजबूर किया कि FIA इसकी तहकीकात बंद कर दे, उस केस को दाखिल दफ्तर कर दे। और आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा? अवाम को एक बड़ी छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि आखिर FIA क्यों 550 अरब की इस नाजायज मुनाफाखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नहीं करना चाहता। इसलिए कि शुगर माफिया के तमाम तर लोग उन्हीं पार्टियों में शामिल हैं जो इस वक्त शरीक इक़्तिदार हैं, यानी कि PMLN, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ। वो तमाम चौधरी, तरीन, वडेरे, शरीफ सब के सब इन्हीं पार्टियों में जमा है। इसीलिए आज अवाम को 170 रुपए किलो चीनी खरीदनी पड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ FIA नहीं चाहती कि चीनी के नाम पर कौम की जेबों पर डाका डालने वालों का एहतसाब हो। बहरहाल ये तो कोई हकीकी मानों में अवामी और जमहूरी हुकूमत ही आकर इन चोरों और मनी लॉन्ड्रों का एहतसाब कर सकती है। बाबर आजम ने बदतरीन वर्ल्ड कप के बाद इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं कि बाबर आजम का एक अच्छा फैसला था। बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी थे और एक बड़े खिलाड़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 8 से 10 साल इंशाल्लाह बाबर आजम बहुत शानदार क्रिकेट खेलेंगे और बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पैरों तले रौंदे जाएंगे। खुद को साजिशों से बचाकर बाबर आजम अपनी क्रिकेट को इंशाल्लाह बचा लेंगे। मैं समझता हूं कि शाहिद अफरीदी और उन जैसे लोग, और जहां सियासत को क्रिकेट का पर मुसल्लत कर दिया जाए तो वहां फिर क्रिकेट का अंजाम और मुस्तकबिल इंतहाई खौफनाक लगता है। मैं समझता हूं कि बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा देकर अच्छा फैसला किया है, और कौम और क्रिकेट के शायकीन को चाहिए कि वो बाबर आजम को सपोर्ट जारी रखें। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह क्रिकेट में ये सियासत की जो आमेज़श है ये पाकिस्तानी क्रिकेट को किस तरह तबाह करने जा रही है। क्रिकेट से रिलेटेड एक और अहम और अफसोसनाक खबर, PCB ने इंजमामुल हक की इस्तीफे के बाद अब एक ऐसे शख्स को PCB का चीफ सिलेक्टर बना दिया है जिसके अपने क्रिकेट क्रेडेंशियल जो थे वो इंतहाई मशकूक थे। वहाब रियाज एक जोशीले फास्ट बॉलर थे, मगर ना तो वो कभी मुस्तकिल टीम का हिस्सा रहे और ना ही उनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि जिसकी बिना पर उसको कौमी हीरो का दर्जा मिलता। उन्होंने हमेशा दूसरी सतह की क्रिकेट खेली, कभी कभार किसी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, अदरवाइज वो हमेशा साइड बेंचेस पर रहे या फिर महज चंद तेज बाउंसर्स कराने तक उनकी कारकर्दगी महदूद रही। लेकिन जब से ये निगरान हुकूमत पंजाब में आई है, रादर आप कह सकते हैं कठपुतली बूटपालशिया सरकार जिसको पंजाब पे मुसल्लत किया गया है और एक गैर आईनी हुकूमत है पंजाब में, तो उसमें एक ऐसे क्रिकेटर को वजीर बनाया गया, यानी कि वहाब रियाज को, कि जिसका सियासत से या इंतजाम इंसराम से कोई ताल्लुक नहीं था। ये बड़ा परेशान कुन खबर थी कि वहाब रियाज का सियासत से क्या ताल्लुक, आखिर उसे क्यों वजीर बना दिया गया। मगर न जाने उसके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि अब की बार उसको PCB का चेयरमैन बना दिया गया है सिलेक्शन कमेटी का। अब इससे आप अंदाजा करें कि जिस शख्स को खुद अपनी सिलेक्शन का नहीं पता था, जिसके पास कोई आला तालीमी डिग्री नहीं है, जिसका क्रिकेट में कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है कि जिसकी बिना पर वो क्रिकेट में पॉलिसी मेकिंग या टीम की तश्कील के बारे में कुछ सोच समझ या फहम का अदराक रखता हो, उस शख्स को PCB की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। ये यकीनन क्रिकेट में सियासत की आमेज़त ही का नतीजा है, और इसके मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी क्रिकेट को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। काजी फायद ईसा साहब की जो काजियात हैं, जो चुटकुले हैं, वो जारी हैं। बजाय इसके कि काजी साहब अहम जो केसेस हैं उनकी तरजीही बुनियादों पर समाअत करें और वो बेगुनाह लोग जो सियासी बुनियादों पर जेलों में कैद हैं जिनको उनको इंसाफ मुहैया करें, वो बहुत से सियासी चुटकुले छोड़ते रहते हैं। अब उसका ताजा तरीन चुटकुला यह है कि एक केस की पैरवी के दौरान
जब डिप्टी डीएसपी को साहिब कहकर पुकारा गया तो उन्होंने कहा कि आपने डीएसपी को साहिब क्यों पुकारा। कारी साहब ने वकील से तकरार करते हुए कहा कि ये तो अंग्रेज के दौर की बाकियात हैं, आप इनको साहिब कहते हैं, ये अवाम के खादम हैं। ये हम बहुत अच्छी बात है, फिर तो माई लॉर्ड भी कहना छोड़ देना चाहिए, ये भी कोई कुरान और हदीस से नहीं निकला। फिर जज को जज साहिब भी कहना छोड़ देना चाहिए। फिर जज की बीवी से उसके असासों की जब तफसीलात मांगी जाती है तो फिर जज को एहतसाब से बालातर भी नहीं करार देना चाहिए। और फिर जिस तरह एक और मामले की रिपोर्ट देते हुए कादी साहब ने यह कहा है कि मालूमात तक रिसाई के एक्ट के तहत भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, तो फिर वहां पर भी इस्तिस्ना खत्म कर देना चाहिए। कादी साहब ये बहुत अच्छी बात है कि आप अफसरों को साहिब कहने से रुकवा रहे हैं, तो फिर अदलिया के जजों को भी साहिब कहने से रुकवाएं, वो भी कोई फरिश्ते नहीं है या आसमान से उतरी मखलूक नहीं। मेरी काजी साहब से 10 बदस गुजारिश है कि आप काइंडली इन ऑप्टिक्स में मत जाएं, ये दिखावे के मामला से परहेज करें और खुदारा उन मामला की तरफ तवज्जो दें जिनका ताल्लुक इंसाफ से है, लोगों को इंसाफ दें। और आखिर में रेकोडिक, मैंने आपको कल भी जिक्र किया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, रेकोडिक को हड़प करने का मंसूबा तैयार किया गया है और इसी सिलसिले में मियां साहब बलोचिस्तान गए थे ताकि बलोचिस्तान की पिछली 200 साल तारीख के मुताबिक बलोच सरदारों से मिलकर बलोचों के हकूक पर एक बार फिर डाका डाला जाए। और इस बार ये छोटा मोटा नहीं, 25 से 30 अरब डॉलर का डाका है जो कि मियां साहब मारने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बलोचिस्तान के गासिब सरदार और पाकिस्तानी अवाम का खून चूस कर लंदन में और दुनिया के 17 ममालिक में असासे बनाने वाले आले शरीफ कामयाब होते हैं या कि पाकिस्तानी अवाम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। वो लोग जो खुद को पाकिस्तान का मुहाफिज और ठेकेदार समझते हैं, जो समझते हैं कि उनसे ज्यादा पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं करता, देखते हैं कि वो कैसे पाकिस्तानियों के मुफादात पे पड़ने वाले इस डाके को रोकते हैं, इसका सद्देबाब करते हैं। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।